بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنی خوابوں کی دنیا میں سویا ہوا پڑا تھا جب اماں نے تیز آواز سے مجھے جگایا، اٹھ جاؤ تنویر، تمہارے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ڈاکٹر کی طرف لے کر جانا ہے۔ میری تو آدھی آنکھیں ہی کھلی تھیں کہ میں اٹھ بیٹھا اور منہ دھو کر ابا کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ ابا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں نے ان سے طبیعت کی خیریت پوچھی تو وہ ہلکی سی آواز میں بولے کہ اب کچھ بہتر ہوں۔ کچھ دن پہلے ہی ابا کو شدید بخار نے آن گھیرا تھا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اماں بیچاری سارا دن برف کی پٹیاں رکھ رکھ کر تھک جاتی، ہلکی پھلکی دوائی بھی چل رہی تھی۔ پھر میں ابا سے کہنے لگا کہ آج کسی دوست سے ادھار لے کر آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، کتنے دن ہو گئے ہیں، آپ کا بخار تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو ابا کہنے لگے کہ بیٹا، مجھے لگتا ہے اب میرا وقت پورا ہونے والا ہے، اسی لیے شاید بخار جانے کا نام نہیں لے رہا۔ مگر بیٹا، ایک بات تم سے کہتا چلوں کہ گھر میں جو تمہاری 2 جوان بہنیں اور ماں ہیں، ان کا سہارا اب تمہیں ہی بننا ہے۔ تم ایک کام کرو، صاحب جی سے جا کر میرا نام لے کر کہو کہ میری جگہ اب نوکری پر تمہیں رکھ لے۔ ویسے بھی کئی سالوں سے میں ان کی طرف کام کر رہا ہوں، ان کا مجھ پر اچھا خاصا یقین ہے۔ ویسے بھی کام ہی کتنا ہے، ڈرائیونگ تو ویسے بھی تمہیں آتی ہے، اس لیے میری جگہ پر اب تم نوکری کر لو۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں شہر بھیجوں گا، تم اپنی مرضی کی نوکری کرتے، مگر کیا کریں، نہ تو اتنے وسائل ہیں اور نہ ہی تمہیں گھر سے دور بھیجنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ اب اس بخار کے بعد تو بالکل ہی زندگی سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب میں دوبارہ اس بیماری سے نجات حاصل کر سکوں گا۔ ابا کی باتیں تو مجھے اب ڈرانے لگی تھی، مگر پھر بھی ان کا اکلوتا بیٹے ہونے کے ناطے مجھے ان کا حوصلہ بننا تھا۔ میں ابا کے صاحب جی کے ہاں نوکری کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اب یہ میری مجبوری بن گئی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں شہر جا کر کوئی نوکری تلاش کروں گا اور اچھے پیسے جمع کر کے ہر ماہ اپنے گھر اماں کے پاس بھیجوں گا۔ میں نے گریجویشن مکمل کر لیا تھا، اب میرا ارادہ یہی تھا، مگر وقت نے نہ جانے ہم لوگوں کے ساتھ کون سا نیا کھیل کھیلنا تھا اور ہمیں اسی کے سانچے میں ڈھلنا تھا۔ میرا نام تنویر احمد ہے، میری عمر 28 سال ہے۔ میرا تعلق ایک نچلے طبقے کے گھرانے سے تھا۔ گھر میں اماں، ایک بوڑھا باپ، 2 جوان بہنیں موجود تھیں۔ ابا ایک بہت بڑی کوٹھی پر ڈرائیور کی نوکری کرتے تھے۔ یہ نوکری ان کو تب ملی تھی جب ہم لوگ کافی چھوٹے تھے۔ ابا پہلے ایک ٹرک چلایا کرتے تھے جس سے ہمارے گھر کا گزارا اچھے سے ہوتا تھا۔ میری دونوں بہنوں نے بھی میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی، وہ دونوں بھی اب جوان تھیں۔ بڑی والی تو مجھ سے محض 4 سال ہی چھوٹی تھی، اب اس کی بھی شادی کی عمر تھی، مگر گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس کی شادی کا سوچا جائے۔ ابا کی جو بھی تنخواہ آتی اس سے گھر کے باورچی خانے کا چولہا اچھے سے چل رہا تھا۔ مجھے ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے اپنی ڈگری مکمل کیے ہوئے۔ میں بالکل بھی ابا والی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب حالات نے مجھے وہیں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں ابا کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یوں میں نے ابا کا دل رکھتے ہوئے ان کو حامی بھر لی تو ابا کہنے لگے کہ آج سے ہی تم صاحب جی کی طرف جاؤ، میری جو بچی ہوئی تنخواہ ہے وہ بھی لے کر آؤ، اور ساتھ ہی تم اپنی نوکری کی بھی بات ان سے کر ہی دو۔ میں ابا سے کہنے لگا کہ پہلے میں آپ کو ڈاکٹر کی طرف لے کر جاؤں گا، پھر ہی کوئی فیصلہ کریں گے اس بارے میں۔ ابا میری بات سن کر مطمئن ہو گئے۔ چائے ناشتہ کر کے میں فریش ہوا اور اماں سے کہا کہ ابا کو بھی تیار کروا دیں جب تک میں کسی دوست سے 2-3 ہزار روپے ادھار لے کر آتا ہوں۔ ان سے یہ کہہ کر میں باہر نکل آیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری منزل کیا ہے۔ چلتا چلتا میں تھوڑا دور نکل آیا تھا، میرے ہاتھ میں 1 پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں ابا کو ڈاکٹر کی طرف لے جاتا۔ تبھی اچانک ہی ایک تیز رفتار کار میرے سامنے آ کر رکی، میری اس سے ٹکر ہوتے ہوتے رہ گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ میں ابھی تک صحیح سلامت تھا۔ میں نے جیسے ہی چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک لڑکی کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کی گھنی پلکیں اور نشیلی آنکھیں جب میری طرف اٹھی تو میں بالکل ٹھٹک کر رہ گیا۔ ارے آپ، میں معذرت خواہ ہوں، میرا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ کہنے لگی، کہیں آپ کو لگی تو نہیں؟
اس سے پہلے کہ میں مزید اس سے کچھ بات کرتا وہ گاڑی سے یکدم نیچے اتر آئی۔ وہ کہنے لگی، احمد چاچا کی طبیعت کیسی ہے؟ اب میں ان سے کہنے لگا کہ بخار کافی زیادہ ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو وہ بہت افسوس کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہمیں ان کا بہت انتظار ہے، بابا روزانہ ہی ان کا پوچھتے ہیں۔ میں اپنی نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ بابا کے لیے کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ احمد چاچا کے ساتھ کافی اچھا وقت گزرا ہے بابا جان کا، اور مجھے بھی احمد چچا سے کافی زیادہ لگاؤ ہو گیا ہے۔ بچپن سے ہی وہ مجھے اکثر اسکول میں چھوڑنے کے لیے جاتے تھے۔ جب کبھی ڈرائیور گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا تو میں چاچا کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ بات کر کے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ باتونی لڑکی تھی، اور پھر وہ باتیں کرتے کرتے میرے ساتھ میرے گھر میں آ گئی تھی۔ میں اس بات پر شرمندہ ہو رہا تھا کہ نہ جانے گھر کی کیسی حالت ہوگی، بہنوں نے گھر کو صاف ستھرا بھی کیا ہوگا یا نہیں، اور جانے مہمان کو چائے کے ساتھ دینے کے لیے کچھ موجود بھی ہوگا یا نہیں۔ اس وقت تو میری جیب میں بھی پھوٹی کوڑی نہیں تھی جو میں گھر میں اس کے لیے لے کر جاتا۔ تبھی راستے میں پڑنے والے بازار سے اس نے ڈھیر سارا فروٹ خریدا اور پھر میرے گھر میں داخل ہوئی، تو میں نے اماں کو چپکے سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، اور جب ان سے چائے پانی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، گھر میں تو ہر چیز ختم ہو چکی ہے، تو اگر نکڑ والی دکان سے کچھ لے کر آؤ تو اس کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ یوں بھی یہ ہمارے گھر میں پہلی بار آئی ہے، وہ کیا سوچے گی کہ ہم لوگ بالکل بھی مہمان نواز نہیں ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں ہچکچا گیا تھا۔ نکڑ والی دکان سے میں پہلے بھی کتنی بار سودا سلف ادھار پر لا چکا تھا۔ جب سے ابا بیمار ہوئے تھے وہیں سے ہی سارا سامان آ رہا تھا، اور اب تو اس نے ادھار دینے سے منع کر دیا تھا۔ اب تو وہ پیسوں کا تقاضا بھی کر رہا تھا۔ یہی بات میں نے اماں کو بتائی تو وہ چپ ہو کر رہ گئی، پھر کہنے لگی کہ جو کچھ وہ لائی ہے وہی اس کے آگے رکھ دیتی ہیں، اب ہم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہیں۔ میں بھی خاموشی سے دوسرے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ آخر ہماری بھی کیا زندگی ہے، کیا ہم ساری زندگی یوں ہی ضروریات زندگی کے لیے ترس ترس کر گزار دیں گے؟ آخر ہماری زندگی میں آسانیاں کب تک آئیں گی، کب یہ مشکلات ختم ہوں گی؟ تبھی میری نظر میں اسی لڑکی کا چہرہ گھوم گیا، اس کی بڑی سی لشکاریں مارتی ہوئی گاڑی اور اس کا چمکتا ہوا بے فکر چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں تو پہلی ہی نظر میں اس کے حسن سے گھائل ہو گیا تھا۔ میرا دل اس کو دیکھ کر عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے سے اس کا معصوم حسین چہرہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا، اور وہ لڑکی ابا کے پاس بیٹھی نہ جانے کون سے زمانے کی باتیں کر رہی تھی جو اس کی باتیں ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اماں نے مجھے باہر بلایا اور کہنے لگی کہ یہ لڑکی تمہارے ابا کو ہسپتال لے کر جانے کی ضد کر رہی ہے، اور گھر میں تو پیسے نہیں ہیں، کیا کیا جائے؟ میں بھی یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اماں کہنے لگی کہ تم اپنی کسی دوست سے ادھار لے لو، کسی سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے کوئی ہماری مدد کر سکے، یوں خالی ہاتھ اس کے ساتھ تمہارے باپ کو بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ ابھی ہم دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب اس کی آواز سنائی دی، آنٹی آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، احمد چاچا ہمارے ملازم نہیں بلکہ ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہیں، اور ان کو میں اپنی طرف سے ہسپتال میں لے کر جا رہی ہوں، میں خود ہی ان کا چیک اپ بھی کرواؤں گی، آپ اس بارے میں بالکل فکر مند نہ ہو۔ امی اور میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گئے تھے کہ اس نے ہماری باتیں سن لی تھی۔ تبھی امی شرمندگی مٹانے کی خاطر اس سے کہنے لگی، مگر بیٹا یہ مناسب نہیں لگتا، پہلے بھی تم لوگوں کے ہم پر کافی احسانات ہیں۔ وہ امی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی کہ کیسے احسانات؟ احمد چچا کام کرتے ہیں اور اپنی محنت کا معاوضہ لیتے ہیں، اس میں احسان والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ ابو کو لے کر جب ہسپتال آ گئی تو امی نے مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز نے ابو کا تفصیلی چیک اپ کیا اور پھر کافی مہنگی دوائیں بھی لکھ کر دی تھیں۔ اس لڑکی نے نہ صرف ابو کو وہ تمام دوائیں خرید کر دی تھیں بلکہ گھر کے پاس اتار کر چپکے سے پیسے بھی ابو کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے، پھر اس کے ساتھ انہیں میری نوکری کی بھی آفر کر دی تھی۔ ابو جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے،
मैं उनके साथ मौजूद होने के बावजूद भी इस बात से बेखबर था कि उसने अब्बू को क्या कहा था। घर आने के बाद जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मेरे दिल में उस लड़की के लिए कदर बढ़ गई थी। आज जब मैं रात को सोने के लिए लेटा तो मेरी आंखों के सामने फिर से उसी का चेहरा घूमने लगा था और मैं ना चाहते हुए भी उसी के बारे में सोचते हुए सो गया था। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो अम्मी ने मुझे कह दिया कि तुम्हारे बाबा की तबीयत पहले से बेहतर है, मगर इसके बावजूद वो अभी कुछ वक्त तक काम पर नहीं जा सकते। तुम जानते हो कि घर के हालात कैसे हैं, सब कुछ तुम्हारे सामने है और इसलिए अब तुम्हें काम पर जाना होगा। अम्मी की बात सुनकर मैं अफसुर्दा हो गया। तभी वो मुझे कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं और तुम किसी काबिल बनना चाहते हो। तुम्हें ये नौकरी अपने काबिल नहीं लग रही, मगर मत भूलो कि मेहनत में कभी आर नहीं करनी चाहिए। अगर तुम आज ही मेहनत करने से हिचकिचाओगे, अपनी जान छुड़ाओगे, तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक इंसान मेहनत करने की आदत नहीं डाल लेता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये सब तो मैं भी जानता था और घर के हालात भी मेरे सामने थे। मुझे अपनी बहनें भी नजर आ रही थीं। वो जवान जहान थीं, अब उनकी शादी की उम्र थी और ऐसे में घर की गाड़ी चलाने के लिए मुझे कुछ करना था। मैं अल्लाह से बेहतरी की दुआ कर रहा था कि अब्बू जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, वो अपने काम पर चले जाएं, या फिर मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो मैं फिर अब्बू से ये काम ही छुड़वा दूंगा। नाश्ता करने के बाद यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अब साहब जी के घर में आ गया था। चौकीदार से जब मैंने अपना तारुफ करवाया तो उसने मेरे लिए घर का दरवाज़ा खोल दिया और मुझे कहने लगा कि साहब जी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो साहब जी को अपना मता बताया कि मैं आपके ट्रक ड्राइवर का बेटा हूँ और मैं उनकी जगह पर नौकरी करना चाहता हूँ। तब उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। वो कहने लगे कि मगर ट्रक ड्राइवर की नौकरी तो हम लोगों ने किसी और को दे दी है। तुम्हारे अब्बू काफ़ी टाइम से यहाँ पर नहीं आ रहे थे और मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। अब अगर ये नौकरी भी हाथ से चली जाती तो मैं क्या करता। मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ पर आया था। मेरी माँ और बहनें तो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा पुरुमीद थी कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, मगर साहब जी कह रहे थे कि उन्होंने इस काम के लिए किसी और को रख लिया है। तभी वो मेरे चेहरे पर छाए तासुरात देकर हंस पड़े और कहने लगे कि तुम्हारा अब काम ये है कि तुमने मेरी बेटी को कॉलेज में छोड़ने और ले जाने की जिम्मेदारी निभानी है और उसकी हिफाजत करनी है। उनकी बात सुनकर मैंने गहरा सांस लिया। ये नौकरी तो पहले से भी ज्यादा आसान थी। मैंने हाँ में सर हिलाया तो फिर मैंने हिचकिचाते हुए उनसे अब्बू की बाकी तनख्वाह का भी जिक्र किया तो उन्होंने मुझे अब्बू की तनख्वाह से ज्यादा पैसे दे दिए थे। ये देखकर मैं सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखने लगा। आपने मुझे पैसे ज्यादा दे दिए हैं, इतने तो मेरे अब्बू की तनख्वाह नहीं बनती। वो कहने लगे ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। यूं भी तुम्हारा बाप बीमार है, उसकी बीमारी पर तो काफी खर्चा उठ गया होगा। मैं जानता हूँ उसके घर के हालात, वो तो घर का वाहिद कफील है और अगर घर का वाहिद कफील बीमार पड़ जाए तो घर के क्या हालात होते हैं, मुझसे ज्यादा इस बारे में कौन बेहतर जानता होगा। ये कहकर साहब जी का चेहरा अफसुर्दा हो गया था और फिर उनका शुक्रिया अदा करके मैं घर वापस आ गया। मैं जान गया था कि वो दिल के बहुत बड़े लोग थे, तभी तो उन्हें अल्लाह ने इतना नवाजा था। घर आने के बाद ये सारे पैसे मैंने अम्मी के हाथ पे रखे तो उनकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। वो उसी वक्त खुदा का शुक्र अदा करने के लिए शुक्राने के नफल पढ़ने लगी थी। घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे और अगर ये पैसे ना आते तो दुकानदार ने घर पर आकर कर्ज का तकाजा करना था और भी कई लोगों ने छोटे मोटे कर्ज लिए थे जो रकम उन्हें अदा करती गई थी और फिर भी कुछ पैसे अम्मी के पास बच गए थे। अब अम्मी मुतमईन थी और साहब जी को और उनकी बेटी को दुआएं देते हुए नहीं थकती थी। अब मैं सुबह घर से निकल आता था और सारा बीबी को कॉलेज में छोड़ने के बाद मैं घर वापस आ जाता था। कभी कभार घर का कोई छोटा मोटा काम होता तो वो मैं कर दिया करता था और फिर छुट्टी का वक्त उन्हें लेकर घर आ जाता था। ये काम बहुत ज्यादा आसान था और मैं सोच रहा था कि इसके साथ साथ मुझे कहीं नौकरी के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। यूं भी इतनी मामूली तनख्वाह में गुजारा होना तो बहुत मुश्किल काम था।
ये नौकरी तो मेरे शायाने शान नहीं थी। तभी मैं अखबारात में इश्तहार देखने लगा था कि कहाँ पे मुझे मेरी डिग्री के मुताबिक नौकरी मिल सकती है। उस दिन मैं घर सारा बीबी को घर लाने के बाद वापस जाने लगा तो मुझे बेगम साहिबा ने रोक लिया और कहने लगी कि मुझे बाजार से कुछ शॉपिंग करनी है, इस वजह से अभी तुम यहीं पर रुको। और फिर मैं लाउंज में बैठ गया था। टेबल पर पड़ा हुआ अखबार उठाकर मैं नौकरी के लिए इश्तहार देखने लगा। तभी मेरे पीछे सारा बीबी आकर खड़ी हो गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किस चीज का इश्तहार देख रहे हो। तो फिर मैंने उन्हें अपनी बात बताई। वो मेरी डिग्री के मुतालिक जानकर बहुत मुतासिर नजर आने लगी थी और मुझसे कहने लगी कि मैं पापा से तुम्हारे बारे में बात करूंगी, हो सकता है वो तुम्हारी जॉब का कोई बंदोबस्त कर सके। ये सुनकर मैं खुश हो गया। मुझे इससे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया था। साहब जी तो बहुत अच्छे थे और अगर मैं उनसे ये बात कह देता तो वो कभी भी इस बात के लिए इनकार नहीं करते। अब्बू की सेहत दिन ब दिन बेहतरी की तरफ गामजन थी, मगर अभी भी मैं उन्हें काम पर नहीं जाने देता था। मैं समझता था कि उन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। और फिर उस दिन जब मैं साहब जी के घर में आया और सारा बीबी को कॉलेज में लेकर जाने लगा तो यहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। साहब जी मुझे कहने लगे कि कुछ दिन तक मेरी बेटी कॉलेज में नहीं जा सकती। बात उनकी नॉर्मल थी, मगर उन्होंने जिस अंदाज में कहा था उनका अंदाज मुझे चौंका रहा था और मैं दिल ही दिल में ये सोचकर परेशान हो गया था कि कहीं उन्हें मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मेरे बारे में कुछ ऐसा मालूम हुआ था जिसकी वजह से वो ये बात कह रहे थे। मैं जब साहब जी से पूछा कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हो। मेरी बेटी तो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, मगर हमारी कुछ दुश्मनी है जिसकी बिना पर मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन तक मेरी बेटी घर में ही रहे और उसके बाद ये दोबारा से कॉलेज में जाने लगेगी। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया था कि मेरी तो नौकरी ही यही है, मेरा तो काम ही सारा बीबी को कॉलेज में लाने और छोड़ने का था, और अगर वो कॉलेज में नहीं जाती तो फिर मैं क्या कर सकता था। मेरा तो काम ऐसे अधूरा रह जाता और मुझे तनख्वाह किस चीज़ की मिलती। यही सोचकर मैं घर आ गया था। मैंने अपनी परेशानी का जिक्र अम्मी से नहीं किया था। मैं सोच रहा था न जाने कितने दिन तक सारा बीबी कॉलेज से छुट्टियां करेंगी और कब तक उनका ये मसला हल होता है। 2 दिन के बाद साहब जी ने मुझे फ़ोन करके घर में बुला लिया तो मैंने भी सुख का सांस लिया था। जब उनके घर में गया तो साहब जी मुझे कहने लगे कि तुम्हारे ज़िम्मे एक और काम भी है। जब तक सारा कॉलेज में नहीं जाती तब तक तुमने एक और काम भी करना है। मुझे तुमसे ज़्यादा ईमानदार शख्स कोई नज़र नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ड्यूटी तुम ही सर अंजाम दो। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। उनसे पूछने लगा कि आप मुझसे क्या काम लेना चाहती हैं। तब वो कहने लगे कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे घर में चौकीदार के फराइज सर अंजाम दो। रात को तुमने चौकीदारी करनी है और सुबह तुम सारा को कॉलेज में छोड़ने के लिए जाओगे। उसके बाद तुम बाकी का वक्त सोकर गुजार सकते हो और फिर छुट्टी के बाद जब तुम उसे लेकर आओगे तो उसके बाद भी तुम रात तक आज़ाद हो। तुम जो चाहे करना, तुम्हें मैं किसी काम के लिए नहीं कहूँगा, मगर ये 2 काम तुमने करने हैं और तुम्हें इस काम का मुआवजा भी माकूल मिलेगा। ये सुनकर मैं एक हद तक मुतमईन भी हो गया था कि मुझे इस तरह से तो डबल तनख्वाह मिल जानी थी और मेरे पास जो वक्त बच गया था उसमें मैं कोई और नौकरी भी ढूंढ सकता था। तभी मैंने साहब जी से पुराने चौकीदार के बारे में पूछा कि वो अब कहाँ पर है। वो तो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से अंजाम दे रहा था। साहब जी ने गहरी सांस ली और कहने लगे कि बस उसके साथ कुछ मसाइल हो गए थे जिसकी बिना पर वो काम छोड़कर जा चुका है। उस चौकीदार को मैं जानता था। वो कच्ची बस्ती का रहने वाला था। वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था और वो बहुत ही ज्यादा बहादुर इंसान था। मैं उससे बहुत ही ज्यादा मुतासिर था। फिर मैं आज शाम को ही चौकीदारी के फराइज सर अंजाम देने के लिए आ गया था। आज मेरा ड्यूटी पर पहला दिन था और मैं अमूमन रात को जल्दी सो जाया करता था। ये पहली रात थी जो मैंने जागते हुए गुजारी थी, इसलिए बार बार मुझे नींद के झोंके भी सता रहे थे। मैं दरवाजे के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया और बैठते साथ ही मुझे नींद के झोंके सताने लगे। मैं नींद की वादियों में खो गया।
एकदम मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे कंधे से पकड़कर हिलाया हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, इधर उधर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। तभी मैं फिर से अपनी ड्यूटी सरंजाम देने लगा था। बार बार साहब जी कमरे से बाहर आते और मेरे आसपास आते, चारों तरफ देखते और फिर कमरे में चले जाते। मैंने उन्हें बहुत कहा कि मैं जाग रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप जाकर सो जाएं, आप आराम करें। आप मुझे तनख्वाह तो इसी चीज की दे रही हैं कि मैं आपके घर की हिफाजत करूं। तब वो कहने लगे कि बात तुम्हारी ठीक है, मगर कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके बारे में तुम्हें मैंने ला इल्म रखा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। तभी मैं भी जाकर अपना फर्ज भी अदा कर रहा हूँ। उनके चेहरे के तासुरात देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और उन्हें परेशान देखकर मैं भी चौंक उठा था। न जाने ऐसी कौन सी बात थी जो बड़े साहब जैसे मजबूत असाब के मालिक शख्स को भी जिसने झंझोड़ के रख दिया था। अब मैं पूरे बंगले में घूमकर ड्यूटी दे रहा था। पूरे बंगले के इर्द गिर्द में चक्कर काट रहा था। तभी मैं दरवाजे के पास जब पहुंचा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई भागते हुए गुजरा हो। अब जब मैंने पलट कर देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। मैं हैरान रह गया, ये आवाज कैसी थी, और फिर मैं नजरअंदाज करके आगे चलने लगा। तभी मुझे किसी के कहकहे की आवाज सुनाई दी। अब की बार जब मैंने पलटकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में डर गया था कि ये कैसी आवाजें थीं जो मुझे डरा रही थीं, और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे आसपास कोई मौजूद था, मगर आसपास होने के बावजूद भी वो नजर नहीं आ रहा था। अब मैं दिल ही दिल में डर रहा था। और फिर जब मैं अपनी कुर्सी पर आकर बैठा तो मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब मैंने पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं एक बहादुर नौजवान था, मगर इसके बावजूद भी मैं खौफ से कांपने लगा था। मैंने इस बंगले के बारे में इससे पहले ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनी थी जिससे मुझे ये अंदाजा होता कि इस बंगले पर आसेब थे। यूं भी कभी उस चौकीदार ने भी मुझे ये बात नहीं बताई थी, मगर अब जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि आखिर उस चौकीदार ने ये नौकरी क्यों छोड़ी, क्योंकि ये लोग तो इस तरह नौकरी की खासी तनख्वाह भी दे रहे थे और उसके तो छोटे छोटे बच्चे थे, उसे तो काम की जरूरत थी। यूं वो कैसे अचानक ये काम छोड़ सकता था। मैं जितना सोचता जा रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। कुछ दिन के बाद सारा बीबी ने दोबारा से कॉलेज में जाना शुरू कर दिया था। उनको कॉलेज में छोड़ने के बाद मैं अपने घर आता और सो जाता, और फिर जब उनकी छुट्टी का टाइम होता तो मैं दोबारा जाग उठता, और फिर उन्हें उनके घर में छोड़ने के बाद मैं अपने लिए कोई नौकरी ढूंढने लगता था। मगर मेरी किस्मत कि मुझे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। यूं भी इन दोनों कामों की तनख्वाह से तो घर का निजाम बहुत अच्छा चलने लगा था, और अब तो अम्मी ने कुछ रकम पस से अंदाज भी करनी शुरू कर दी थी। अम्मी बहुत खुश रहने लगी थी कि घर में खुशहाली आ रही थी, मगर इसके लिए मैं किस कदर मेहनत कर रहा था ये मैं ही जानता था। रात को जब मैं ड्यूटी दे रहा होता था तो मेरे आसपास किसी की भी कभी हंसने की आवाज़ सुनाई देती, कभी कोई मुझे छू के गुजर जाता, तो कभी कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर, कभी कोई मुझे आवाज़ देकर मुझे अपनी जानिब मतवज्जो करने लगता था। और ये सब देखकर मैं परेशान हो जाता था। अगर साहब जी बार बार मेरे आसपास आकर मुझसे मेरी खैरियत मालूम ना करते तो शायद मैं यहाँ से भाग जाता, मगर भागकर मैं कहाँ जाता। इसके अलावा तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। उस दिन जब मैं सारा बीबी को कॉलेज से घर वापस ला रहा था, अभी हम लोग सुनसान रास्ते पर पहुंचे ही थे कि अचानक से मेरी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी को चेक करने की गर्ज से जब मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे आया तो तभी झाड़ियों में से कुछ लोग निकलकर गाड़ी के आसपास आकर जमा हो गए थे। वो सब मर्द थे जिन्होंने अजीब से लिबास पहन रखे थे। उनके अजीब से हुलिये देखकर मैं कदरे परेशान हो गया था। उन लोगों के चेहरे भी पोशीदा थे और वो अजीब सी जुबान में सारा बीबी को गाड़ी से बाहर निकलने का बोलने लगे। तभी सारा बीबी मुझे चीखती आवाज़ में कहने लगी कि फौरन से गाड़ी में बैठो। मैं परेशान हो गया क्योंकि गाड़ी तो खराब हो चुकी थी और गाड़ी में बैठकर हम लोग यहाँ से फरार भी नहीं हो सकते थे। रास्ते में वो शख्स भी खड़ा था। मैंने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया तो उस शख्स ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत ही ज्यादा गर्म था, इस कदर गर्म
کہ وہ مجھے अपने बाजू में धंसता हुआ महसूस होने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी आग ने मेरे बाजू को छू लिया हो। मैंने उससे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, मगर मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका था। तभी मेरे सर पर किसी ने जोरदार चीज मारी थी, जिससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं एक अजनबी कमरे में था। कमरा हर किस्म की आराइश से आरास्ता किया गया था और कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। आंखें खोलते ही मुझे बेहोश होने से पहले के मनाजिर याद आने लगे तो मुझे मालूम हुआ कि मैं तो इस वक्त एक अनजानी जगह पर था। सर पर चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया था और अब मैं न जाने कहां पर था, और वो लोग सारा बीबी को गाड़ी से बाहर निकलने की बात कर रहे थे। क्या मैं और सारा बीबी अगवा हो चुके थे, और क्या हम किसी अजनबी जगह पर थे? हमें कोई नुकसान पहुंचा देता तब हम क्या करते? अभी मैं ये सोचे जा रहा था जब मुझे अपने कानों में एक मानूस आवाज सुनाई दी, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? जब मैंने आवाज पर चौंक कर देखा तो मेरे सामने बड़े साहब जी थे। साहब जी को देखकर मेरी जान में जान आई, और मैंने साहब जी को जब सारी बात बताई तो वो कहने लगे कि हाँ, मुझे मालूम है कि तुम लोगों के साथ रोड पर हादसा हुआ था, मगर वहाँ पर मेरे कुछ आदमी पहुँच गए थे। अगर वो बर वक्त वहाँ पर ना पहुँचते तो तुम लोगों को कोई न कोई नुकसान पहुँच सकता था। खुदा का शुक्र अदा करो कि वो लोग वहाँ पर बर वक्त पहुँच गए। साहब जी की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया कि सारा बीबी बिल्कुल ठीक थी, मगर मैं ये सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि वो अजीब से चोगे वाले शख्स कौन थे और उनका इतना अजीबोगरीब हुलिया क्यों था, और वो सारा बीबी से आखिर गाड़ी से बाहर निकलने को क्यों कह रहे थे। सारा बीबी से उनकी क्या दुश्मनी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं ये भी जानता था कि मैं इस घर का मुलाजिम हूँ, और अगर मैं किसी से सवाल पूछूंगा तो ये भी मुमकिन है कि साहब जी को मेरी बात पर गुस्सा आ जाए और वो मुझे मेरी बात का जवाब भी ना दे और मुझे डांट भी दे। तभी ये सोचकर मैं खामोश हो गया था। कुछ देर तक सारा बीबी दोबारा से कॉलेज में नहीं गई थी, और जब मैं रात को ड्यूटी दे रहा होता था तो पहले से भी ज्यादा मेरे साथ पुरस्कार वाकयात होने लगे थे, और चलते चलते कोई मेरे पीछे भागने लगता था, मेरा नाम पुकारने लगता था, और मैं हक तक होकर रह जाता था। उस दिन मेरे साथ फिर से वही मामला हुआ। जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था तो अचानक से मुझे नींद के झोंके सताने लगे थे। जैसे ही मैं नींद में गया तो फौरन से किसी ने मेरे कांधे को झंझोड़ कर मुझे उठा दिया था। अब जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने वही काले रंग के लिबास में मलबूस चोगा पहना हुआ शख्स सर झुकाए खड़ा था, और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरी जानिब बढ़ रहा था। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो वहां पर उसके साथ और भी बहुत सारे उसके हुलिये के लोग थे। ये देखकर मेरे मुंह से जोरदार अंदाज में चीख निकल गई थी। मेरी चीख की आवाज सुनकर बड़े साहब कमरे से भागते हुए बाहर आए थे। तभी मैंने एक अजीब सा मंजर देखा। सहन के दरमियान में यकदम आग भड़क उठी थी, और वो आग आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ने लगी थी। उस आग ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। ये आग गोल दायरे में फैल गई थी, और वो चोगे वाले शख्स दायरे के बाहर खड़े रह गए थे। उनके मुंह से अजीब गराहट नुमा आवाजें निकलने लगी थी। ये देखकर मैं डर गया कि ये आग का गोला कहाँ से आया था और मेरी तरफ कैसे बढ़ा था। तभी मेरा जहन तारीकियों में डूब गया। जब मुझे होश आया तो मैं उसी कमरे में था। साहब जी मेरे पास बैठे हुए थे। वो मुझे कहने लगे कि तुम्हारे साथ जो भी हालात चल रहे हैं, तुम्हें उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना, और फिक्र मत करो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वाकयात भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। दूसरी जानिब सारा बीबी अजीब उलझी उलझी नजर आने लगी थी। हर वक्त वो पुरसोच अंदाज में रहती थी और मुझे वो देखती रहती। जब मैं उन्हें देखता तो वो अपनी नजरों का जाविया बदल लिया करती थी। मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया करता था। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा होने लगा था कि यकीनन सारा बीबी मुझे पसंद करने लगी थी। उनकी आंखें मुझे साफ तौर पर ये पैगाम देते हुए मालूम होती थीं, और मैं फिर उनकी मोहब्बत में डूबता चला गया था, ये जाने बगैर कि मैं इस घर का मुलाजिम था और मैं कभी भी उनके बराबर नहीं आ सकता था। मगर मेरे दिल में सारा बीबी के लिए मोहब्बत की चिंगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी।
मैं तो पहली ही मुलाकात में, पहली ही नज़र में उनके हुस्न से बुरी तरह से मुतासिर हो गया था। अब जब मुझे ये महसूस हुआ कि उनके दिल में भी मेरे लिए पसंदीदगी के जज्बात हैं, तो मैं फिर अपने जज्बात को सुलाने में नाकाम हो रहा था। उस दिन मैं घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में मेरी असलम से मुलाकात हो गई। असलम उसी घर में चौकीदार के फराइज सरंजाम दे रहा था। असलम से हाल अहवाल पूछने के बाद जब मैंने उसे नौकरी छोड़ने का सबब पूछा तो वो गहरी सांस लेकर रह गया और फिर मुझे कहने लगा कि ये लंबी कहानी है, किसी दिन मेरे घर आना तो मैं तब तुम्हें बताऊंगा। उसका अंदाज मुझे चौंका गया था और मैं ये बात जानने के लिए बेताब हो रहा था। तभी शाम को ही मैं ड्यूटी पर जाने से पहले असलम के घर आ गया था। असलम ने मेरी चाय पानी से तवाज़ो की और फिर मुझसे मेरे आने का मुद्दा पूछा, तो मैंने उसे अपना सवाल दोबारा से दोहरा दिया। वो कहने लगा कि बस यार क्या बताऊं तुम्हें, शुरू में तो मुझे ये नौकरी करते हुए मज़ा भी आने लगा था क्योंकि अच्छी खासी तनख्वाह थी। मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होने के साथ साथ मैं बच्चों की ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकता था, जिसकी वजह से मुझे इस काम में मज़ा भी आने लगा था। मगर अब पिछले कुछ दिनों से अजीब वाक़यात होने लगी हैं। घर में बैठे बिठाए आग लग जाती थी और कभी कभार मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई देती थी। यहाँ तक कि वहाँ पर अजीब से हुलिये के शख्स आने लगे थे जिन्होंने काले रंग का अजीब सा लिबास पहने रखा था और वो मुझ पर हमला कर दिया करते थे। कई बार उन्होंने मुझ पर हमला किया। मैंने अपना दिफा करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे काबू कर लिया। कई बार उन्होंने मुझे सख्त नुकसान भी पहुंचाया, मुझे तकलीफ भी पहुंचाई और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। उस दिन जब उन्होंने मुझे बहुत तंग किया तो तब मेरे मुंह से कर्बनाक चीखें निकलने लगी थीं। ये चीखों की आवाज़ सुनकर साहब जी बाहर आ गए थे और फिर उनके बाहर आने की देर थी कि वो शख्स नज़रों के सामने अचानक से गायब हो गए थे। मैं अपनी आंखों को मसलता रह गया था और हैरान परेशान होकर इधर उधर देखने लगा कि वो लोग अचानक से गायब कैसे हो सकते थे। मगर ये सच था और उसके बाद भी चंद ऐसे वाक़यात हुए जिन्हें देखकर मेरी अकल दंग रह गई थी और कई बार मैंने वहाँ पर बहुत सी खौफनाक मखलूक़ात को देखा जिन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। उसके बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने वो नौकरी छोड़ दी। साहब जी से मैंने माजरत कर ली थी और अब जब मुझे वाक़यात याद आती हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाती हैं। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। ये सब कुछ तो मेरे साथ भी हो रहा था। उसकी इस बात ने मुझे चौंका दिया था कि वो लंबे चोखे वाले शख्स अचानक से नज़रों के सामने गायब हो गया था। इसका मतलब ये था कि वो इंसान नहीं थे बल्कि कोई और ही मखलूक थे। और फिर मुझे वो आग वाली बात याद आ गई थी कि किस तरह से आग के दायरे ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था और अब तो मुझे भी साहब जी के घर जाने से डर लगने लगा था। उसी पल मुझे मेरे नंबर पर कॉल आ गई और कॉल करने वाला शख्स एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। मैं कुछ दिन पहले ही उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था। उसने मुझे जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया था। ये जॉब मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक थी। मैं खुशी से झूम उठा। अब तक तो मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे घर वाले फिर कहाँ जाएंगे। और उन्हीं दिनों तो मेरी दोनों बहनों के रिश्ते भी तय पा गए थे। अगर ये मैं नौकरी छोड़ देता तो घर का गुजारा कैसे चलता, बहनों का जहेज कैसे बनता। और अब जब ये कॉल आ गई तो मैं मुतमईन हो गया था कि अपने साहब जी को इस नौकरी से इनकार कर दूंगा। मुझे दिल ही दिल में ये सोचकर निदामत भी हो रही थी कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं कितना खुदगर्ज इंसान हूँ। मगर मुझे अपनी जान और जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं था। और जब मैं साहब जी के घर में गया तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि घर पर ताला लगा हुआ था और वो लोग न जाने कहाँ पर बिना बताए चले गए थे। मैं फिर अपने घर में आ गया और अगले दिन से मैं नौकरी पर जाने लगा। अम्मा को जब मैंने खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे। घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब्बू की भी तबीयत अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर थी। और अब जब अब्बू ने मुझे कहा कि वो अब दोबारा से नौकरी पर जाना चाहते हैं तो मैंने अब्बू को रोका। उन्हें कहने लगा कि अब मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं घर के सारे अखराजात उठा सकता हूँ। आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। यूं भी अब आपकी उम्र आराम करने की है।
मैं नहीं चाहता कि आपको मैं उन जिम्मेदारियों में डालूं। तो अब्बू मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि कैसी जिम्मेदारियां, तुम मेरे बेटे हो और मुझे फख्र है कि तुम में एहसास जिम्मेदारी है, मगर जब तक मैं काम पर जाता रहूंगा मैं भी खुद को सेहतमंद तस्वुर करता रहूंगा। अगर मैं एक बार घर में बैठ गया तो समझ लो कि मैं नकारा हो जाऊंगा और मैं वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होना चाहता। अब्बू की बात भी ठीक थी। जब ही मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और अम्मी भी कहने लगी कि उनकी सेहत के लिए थोड़ा बहुत काम करना जरूरी है, और फिर मैंने अब्बू को काम करने की इजाजत दे दी थी। अब्बू अगले दिन से ही काम पर गए तो उनका भी यही कहना था कि न जाने साहब जी कहाँ पर चले गए हैं। काफी दिन तक तो अब्बू रोजाना ही उनके घर में जाते, मगर उनके घर में ताला लगा देखकर वो मायूसी से वापस पलट आते थे। अब्बू का कहना था कि कितने सालों से मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, मगर कभी भी मैंने इस घर को बंद नहीं देखा। जाने बड़े साहब लोग कहाँ चले गए हैं, वो किसी मुसीबत में मुब्तला ना हो गई हों। अब्बू की बात सुनकर मैं भी चौंक गया था, और फिर एक दिन जब मैं वहाँ पर गया तो घर को ताला लगा हुआ था और मैं हैरान परेशान रह गया। वो लोग कहाँ पर गए थे? मेरा बार बार ध्यान सारा बीबी की तरफ जा रहा था। मैं अपनी आंखें बंद करता था, उनका सरापा छम से मेरी आंखों के सामने आ जाता था। उनकी वो खुशबू मुझे अपनी सांसों में महसूस होने लगती थी, जो वो खुशबू अपने मामूलात जिंदगी में इस्तेमाल करती थी। उनकी मीठी आवाज़ में की गई बातें मेरे कानों में रस घोलती थीं, और मैं चाहकर भी उनको भूल नहीं पा रहा था। गो कि मैं जानता था कि मुझ में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर मैं अपने दिल का क्या करता जो उनके नाम पर ही धड़कने लगा था। देखते ही देखते दिन महीने में और महीने साल में बदल गए थे। मेरे दोनों बहनों की शादी भी हो गई थी, घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे, और अम्मी अब्बू को मैंने उम्रा भी करवा दिया था, और अब मेरे पास छोटी सी सेकंड हैंड गाड़ी भी आ गई थी। मेरी जिंदगी में हर एक चीज़ मैंने हासिल कर ली थी, मगर इसके बावजूद भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये तशनगी थी कि मैं एक बार तो सारा बीबी से मिलूं, एक बार तो मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने देख सकूं, उनसे पूछ सकूं कि वो अचानक से कहाँ पर चली गई और दोबारा वो कभी मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। उनकी आंखें देखकर मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे वो भी मुझे पसंद करती हैं, मगर उन्होंने कभी भी अपनी ज़ुबान से इस बात का इजहार नहीं किया था, और मैं उनकी आंखों में अपने लिए दोबारा से वो पसंदीदगी के रंग देखना चाहता था। मगर वो जाने कहाँ खो गई थी कि मैं लाख चाहने के बावजूद भी दोबारा उन्हें तलाश नहीं कर पा रहा था। मैं रोज़ाना उस घर के पास से गुजरता था, मेरी नज़रें उस घर की जानिब उठ जाती थीं, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आई थी, तो मायूसी से मैं अपने घर आ जाता था। अब इस बात को भी 2 साल का अरसा गुजर चुका था। अम्मी अब मेरी शादी करना चाहती थी, मगर जब भी वो शादी का नाम लेती थी तो मेरी आंखों के सामने वही मनमोहना चेहरा आ जाता था, और मैं ना चाहते हुए भी अफसुर्दा हो जाता था। उस दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था तो आज मुझे वापस आते हुए मामूल से ज्यादा देर हो गई थी। मगरिब का अंधेरा हर सू फैल चुका था। जब मैं सारा बीबी के घर के पास से गुजरने लगा तो हस्बे मामूल मेरी नज़र उनके घर की जानिब उठ गई थी। तभी मेरी नज़र वापस पलटना भूल गई थी, क्योंकि दरवाजे के बाहर सारा बीबी खड़ी थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, और वो फिर बिना कुछ कहे मेरे साथ गाड़ी में सवार हो गईं, और उन्हें अपने रूबरू देखकर मेरे जैसे रगों पे में खुशी की लहर सरायत कर गई थी। और मैं फिर उन्हें लेकर अपने घर जाने लगा तो उन्होंने मुझे रास्ते में गाड़ी रोकने का बोला। उनकी आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गया। तभी वो कहने लगी कि मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो मैं तुम्हारे घर वालों के सामने नहीं कर सकती। उनकी बात सुनकर मेरा दिल खुशी से झूमने लगा था। मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे वो मुझसे अपनी पसंदीदगी का इजहार करने वाली हैं। मगर जो कुछ उन्होंने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, तो इतनी देर तक मैं उनके चेहरे की तरफ बेयकीनी से देखता रह गया था। और फिर जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुकी तो वो मुस्कुराकर कहने लगी कि उम्मीद है कि मुझे तुमसे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है तुम इस बात पर अमल करोगे। ये कहकर वो अपनी जगह से गायब हो गई थी।
اس کے بعد نہ جانے میں کتنی دیر تک وہیں پر کھڑا رہا تھا، اور میں ہوش کی دنیا میں تب آیا تھا جب میرے نمبر پر امی کی کال آنے لگی۔ وہ پریشان ہو رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ آج تم معمول سے زیادہ لیٹ ہو گئے ہو، عموماً اس ٹائم تک تو تم گھر میں آ جاتے ہو، ابھی تک تم کہاں پر ہو؟ تو پھر میں نے امی کو کہہ دیا کہ میں راستے میں ہوں، میں گھر آ رہا ہوں۔ گھر جانے کے بعد میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں سارا بی بی کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ کسی طرح سے بھی یقین کرنے کے قابل نہیں تھا۔ سارا بی بی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک انسان نہیں تھیں، بلکہ ان کا تعلق قبیلہ جنات سے تھا، اور وہ لوگ یہاں پر اپنے کچھ مخصوص کاموں کی تکمیل کے لیے یہاں پر رہ رہے تھے، مگر اسی دوران ان کی دشمنی کچھ ناپاک اور خبیث قسم کے جنات اور کچھ ناپاک عزائم رکھنے والے عاملین کے ساتھ ہو گئی تھی، جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی باندھ لی اور ان کو یہاں سے نکالنے کے درپے تھے۔ اور تبھی اس گھر میں وہ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے، اور وہ ان کے دشمن مخلوق ہی تھی جو اس گھر پر بار بار حملہ کر رہی تھی۔ تبھی سارا بی بی اور ان کے والد اپنے کام جلد سے جلد نمٹانے لگے تھے، اور جیسے ہی ان کے کام مکمل ہو گئے تو وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے واپس چلے گئے تھے۔ سارا بی بی کہنے لگی کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ تم ابھی تک شادی نہیں کر رہے، اور ابھی تک تم میری محبت کو اپنے دل سے لگا کر بیٹھے ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں اپنی حقیقت بتا دوں، تاکہ اگر تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی امید ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ اور ان کی بات سن کر میرا دل بری طرح سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ مجھے یہ حقیقت تسلیم کرنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مجھے بہت وقت لگا تھا یہ بات ماننے میں کہ اب مجھے ساری زندگی ان کے بغیر ہی گزارنی ہوگی، اور پھر جب میں نے امی کو شادی کے بارے میں ہاں کر دی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھیں، اور پھر انہوں نے خاندان میں ہی ایک لڑکی سے میری شادی طے کر دی تھی، اور میں پھر سمجھ گیا تھا کہ بعد کی زندگی میں نے ادھورے پن کے ساتھ گزارنی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔